Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, the main reason behind this is, sir, price action. Yes, sir. The analysis we are doing is going as per our view. Oh, exactly. But the thing is, if it goes against our view, then even then we are not giving so much of losses. We are minimizing our losses. So our focus is not on gaining the profit. It's just on minimizing our losses. So what we are learning and what we are just grasping from what I'm teaching is the basic idea how we can minimize our losses. So we are learning the risk management. We are not here to earn the profit, just we are minimizing our risk, and by doing that we will be able to end our trade in the very profitable manner. Okay. Exact. Hmm. 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 So I think there is no logic behind it. The thing is, so if you are adjusting your trade, then you also need to prepare for a worst case scenario. Then, like when you need to exit that extra sell. Uh, mm-hmm. Sir, it totally depends upon your analysis. Seriously. So you know the trade management. If you know the trade management in itself is not everything. You also need to have a better understanding of the market. Correct? So just analyze the market and don't use multiple indicators. Just use support and resistance and capture a range. And like if you know the range, supposedly I told you that this is the resistance, this is the resistance, and we know that the market is taking resistance from there. Okay. So we have already discussed in the last class that our this was our trade, and the market was standing there at the resistance point. So we have already discussed this point that it will take a it will take a resistance from it will take. Yeah, exactly. So if it breaks the resistance, then we are already ready to sell the puts from the opposite side to minimize our opposite side losses. Okay. But we were also sure that there's a resistance here and market might take resistance and go backside. Okay. And that's what exactly happened. That's what exactly happened. And therefore our iron fly is like in a better situation in comparison of other traders in the market. Okay. Exactly. So right now, exactly. Exactly. Correct. So, okay. So, as we have discussed in our previous classes, that there was a resistance here. Okay. Why we know this, that there is a resistance here? Because market was taking multiple supports here. Okay. And the support got broken with these two candles. And when the support got broken, then it becomes the resistance. I'm telling you, this is the like
very basic thing to tell you, but this is the most accurate thing to learn. If you know this, that it is a line. मार्केट ने ये मान लो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो आप प्लीज़ ये मान लिया करो ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको ये चीज़ लर्न करना आ गई, ठीक, कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो वो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत स्टार्टिंग में ही सीखते हैं मार्केट के अंदर, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है मार्केट के अंदर, बहुत सिग्निफिकेंट है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रॉफिट देती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, बहुत एडवांस चीज़ें सीखने में लग जाता है। एडवांस कुछ नहीं होता, जितने भी इंडिकेटर्स बने हुए हैं दे आर यूजिंग ओनली प्राइस एंड वॉल्यूम्स, वो प्राइस और वॉल्यूम्स यूज़ करके इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, तो वो भी यही चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम अपने एनालिसिस की जगह हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं, और इंडिकेटर्स जनरली लैगिंग होते हैं। आपने देखा होगा हमने एक भी आज तक इंडिकेटर यूज़ नहीं करा, हमने एक भी आज तक मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखो सबका अपना एक ट्रेडिंग का तरीका होता है, सबका अपना एक सेटअप होता है। हमारा सेटअप क्या है कि भाई हम कुछ नहीं करते, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हम पता है क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने पकड़ ली एक रेंज, हम एक रेंज आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के अंदर, जैसे ही हमें रेंज मिलने लगती है बस फिर हम उसको खेलने लगते हैं। ये रेंज हो गई, अब एक ये रेंज बनी हुई है, ये वाली रेंज, ठीक है। फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास फिर से एक ये वाली रेंज है। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो फिर भी हमारे पास एक रेंज है, मैं दिखाता हूँ आपको वो रेंज कहाँ है। देखो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला, ये भी हमें एक रेंज दे देगा। तो आपका फोकस अगर ऐसा है कि आप रेंज फाइंड करते हो, और रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट अगर गिरा भी, ठीक है, तो हमें पता है कहाँ तक गिरेगा, हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो रेंज आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रेंज ना अभी हम सिर्फ किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये सिर्फ मैं पता है कब कर रहा हूँ, जब मैं रेंज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ चार्ट्स के थ्रू, ओनली चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर मैं OI इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, और थोड़ा स्ट्रैडल देख लूँ कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमें एक परफेक्ट रेंज दे देता है। तो पूरा ओवरऑल व्यू बनाने के लिए कि भाई रेंज क्या चल रही है, हमें 3-4 चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ट्स और OI। अगर आप ये दोनों यूज़ करके चल रहे हो तो आपकी रेंज परफेक्ट निकल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहाँ पर, ठीक है। तो हम यही कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारी जो आयरन फ्लाई है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। बोलिए। OI is open interest data. This is the open interest data. We will discuss it, but we will discuss it sooner or later. Yeah, exactly. So this is our ironfly. Now it is in very better condition because the risk reward is 1:5, 1:5. Okay. See, अब मुझे ये ट्रेड होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख रहा है ना, रूम नहीं हो रहा, ऐसे देख लो आप। इस ट्रेड को होल्ड करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। एक तो POP हमारे कितना आ रहा है, 77 हो गया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम थोड़ी रह गया एक्सपायरी में। उसके बाद देखो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 14,000, ठीक, और हमारा मैक्स लॉस कितना आ गया, लगभग 3,000 के अराउंड। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये तो रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल ही है ना। और अभी भी हमें 10% मिल रहा है, तो वैसे तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देते 10% पे, आगे तक नहीं ले जाते, ठीक है। बट फॉर लर्निंग पर्पज सारी चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एंड तक ही चलाएंगे, ठीक है। और अगर मौका मिला, ठीक है, तो फिर से इसको क्या बनाएंगे बताओ, क्या, ऑल ग्रीन, फुल ग्रीन, रिस्क फ्री बनाएंगे इसको, ठीक है, लॉस फ्री बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करा। सुबह जी आपकी जो आयरन फ्लाई वो कैसी चल रही है, प्रॉफिट तो दे ही रही है ना आपको, 700 हो गया प्रॉफिट, चलिए बहुत ही बढ़िया। बस मैं चाहता हूँ कि इस बार तो आप मेरे से पूछते रहना, बट आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप भी मैनेज करोगे उसको, आप डिसीजन लोगे, ठीक है। सर मैं मैनेज करने के बाद आपको भेजूंगा, तो आप बताइएगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है बिल्कुल। और बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं आप तो, बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है। इस वजह से मैं थोड़ा पेशेंटली पढ़ा भी रहा हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है जब आप लोग अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब मैं आके मेरा भी मन करता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं चीज़ें लेके आऊँ और बताऊँ।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से टाइम लेता हूँ, फिर क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसके लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर लाइक कल 9:30 9:35 के लिए और एक ये वेंसडे और थर्सडे के लिए एक आयरन फ्लाई बना है। इंट्राडे? नहीं सर, ये अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। नो, फॉर दिस एक्सपायरी इटसेल्फ, लाइक फॉर द 2 days behind के अच्छा ठीक है, डन डन डन, ठीक है, तो मैं उसको कंपेयर भी कराऊंगा आपको। तो नो एक इसको इंक्रीज हुआ है तो इसको। ठीक है, मैं आपको कंपेयर कराऊंगा, तो मैं फिर ये वाली ट्रेड हटा देता हूँ जो हमारी क्लोज हो चुकी है, मैंने हटाई नहीं ये वाली ट्रेड। ठीक है, इस ट्रेड को हटा दूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, इसमें तो कुछ पूछना नहीं था, है ना? तो एक नहीं काम, सर, क्लियर है, बहुत क्लियर है। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं ट्रेड। ठीक है, अभी मैं दोबारा से जो जहाँ लास्ट क्लास हमारी एंड हुई थी, मैं वहीं से कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा, हाँ थोड़ा अभी मैं इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि हमारी आयरन फ्लाई पे क्या इम्पैक्ट चल रहा है। ठीक है, तो हमारी आयरन फ्लाई जो है बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे तो मैं आपको जनरली बताऊँ, मेन बात यही है जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो 10% आ गया, आप एक टारगेट रख के चला करो, ऐसे आप नहीं चल सकते, आप पूरे तो कभी लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, कि आप पूरा लेने बैठ गए। ठीक है, तो आपको अपने टारगेट्स वगैरह थोड़े डिसाइड करने पड़ेंगे, और 10% तो बहुत है, लोग तो 5 to 6% के लिए खेलते हैं। ठीक है, फिर भी 10% आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने तो अपोजिट साइड से सेलिंग नहीं करी, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक है, करते नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिर भी देखो ये 60,000 में डिप्लॉय हो गई थी। ठीक है, मान लो आपके पास 3.5 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट के अंदर। ठीक है, करेक्ट? तो मैं कितने लॉट से खेल सकता था ये आयरन फ्लाई में बनाता तो कितने लॉट से? नहीं, मैं मान लो अपोजिट साइड से सेलिंग नहीं कर रहा, मैं। ठीक है, 1:4 लॉट हो जाते हैं हमारे, है ना? तो यानी अगर 4 लॉट पे हमने ये आयरन फ्लाई बनाई होती तो हमें अपोजिट साइड से सेलिंग करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बस ये बताओ कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता? ये हमारा होता लगभग 25,000 कह रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 लॉट से अगर हम आप हमारे अकाउंट में 3-3.5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो हमने 4 लॉट पे ये आयरन फ्लाई बनाई होती। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर इसने हमें 10% रिटर्न दिया होता। ठीक है, तो 10%, ठीक है, लगभग मान लो 30 मान लो आप। ठीक है, 30,000, तो चलो ऑन एन एवरेज आप मानो आपका होता 25,000, तो 25,000 प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि इसमें तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बट ऐसा करते नहीं हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, बट हम नहीं करते इसको। ठीक है, हम तो हमें कर सकते हैं सर आराम क्या, से। 2 लॉट तो कर सकते हाँ हैं। दो, हाँ दो, आप 2 लॉट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, हम अकाउंट पे कैपिटल अपनी रखते हैं, पूरी कैपिटल कभी भी डिप्लॉय नहीं करते। ठीक है, और इतनी अपने पास कैपिटल हमेशा अकाउंट के अंदर रखना कि जिससे आप एडजस्टमेंट कर पाओ। ठीक है, 5 लाख में कितना बना सकते हैं सर आयरन फ्लाई? दो ही लॉट बना सकते हाँ सर, 2 लॉट बना लो, बढ़िया, क्योंकि फिर आपको एडजस्टमेंट के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा, है ना? हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में डिप्लॉय करने के टाइम में 4 लाख बना के वो थोड़ा 2 लाख को हाँ रिड्यूस करके वो थोड़ा बढ़ा के हाँ, रखना। बहुत से लोग बहुत दूर दूर से बाइंग भी कर लेते हैं इसके अंदर, अगर देख जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रहा होता है, ज़ीरो का तो अलाउ नहीं करता, बट जहाँ पे भी, बाद में 4 को, हाँ, हाँ 4 लॉट करके ना बाद में थोड़ा 1 मंथ फिर में थोड़ा प्रॉफिट सेंटर में रहा तो फिर वो स्क्वायर ऑफ करके वो वही चलाएंगे। लेकिन सर अभी स्टार्टिंग नहीं करने का है। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी तो आप आराम से एक सिंगल लॉट पे ही करो, और इसकी तरफ ध्यान मत दो, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ठीक है, बस आपका ये रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, हम एंड करेंगे कितना भी आए, बस ग्रीन में एंड करना है, बस अभी यही टारगेट है हमारा, और कुछ टारगेट ही नहीं है। ठीक है, 1% भी टारगेट है सर, उसके ऊपर एवरेज परसेंट मिल गया तो वही बोनस है। हाँ बिल्कुल। अब देखो छोटी सी बात मैं वरना भूल जाता, ठीक है, अब याद आ गई मुझे बात। अब देखो, बात ये नहीं है, बात सबको पता है, सब चीज़ें सब लोग कर भी लेते हैं, बट फिर भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। करेक्ट है बात ये, है ना? ठीक, अब उसका रीज़न ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना ट्रेड की, वो बहुत ही गलत है लोगों के अंदर। ठीक, अब मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सुधारता हूँ। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग सुधारने का मतलब क्या है, देखो ज़रा ढंग से, जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, बस वहीं जीत जाओगे आप। और जहाँ साइकोलॉजी आप चेंज नहीं कर पाए अपनी, बस वहीं हारोगे, चाहे कितनी भी ट्रेड मैनेजमेंट, कितना भी ट्रेड आती हो आपको। अब मैं क्या बात कह रहा हूँ, ये बात क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ढंग से सुनना। देखो आपको ये दिख रहा होगा कि भाई यही है मेन लेग्स हमारे दोनों, है ना, ये दोनों क्या है हमारे मेन लेग्स हैं, ठीक है, हमें यही दें, जो प्रॉफिट देंगे वो यही देंगे, ठीक है। हमने इनके अंदर लॉसेस दिए हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये लॉसेस देख के इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत थी, जब हमें ये दोनों ही क्या दे रहे हैं, ये दोनों ही हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ये बताओ पहले मुझे। पहले आता था ना, इनको देख के लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये पैसा भी हम कमा सकते थे जो हमने मार्केट को दे दिया। ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो दिख रहा है ना, या लॉस, देखो इन चारों में तो हमने लॉसेस बुक कर लिए हैं, है ना, अभी ये दोनों तो रनिंग है और दोनों देखो लॉसेस में चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ढंग से ऑनेस्टली बताना, देखना मैं आपको यहाँ पे सेलर के एडवांटेज दिखाता हूँ। चाहे आप पुट बाय करते, चाहे कॉल बाय करते, चाहे पुट बाय करते, चाहे कॉल बाय करते, चाहे पुट बाय करते, चाहे कॉल बाय करते, बताओ क्या होता। बाइंग बाइंग में आप हारते। समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। बाइंग सिर्फ उनके लिए जो मोमेंटम पकड़ते हैं बस, ठीक है, पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठे मोमेंटम पकड़ते हैं, और वो भी पूरे टाइम प्रॉफिटेबल नहीं होते यार, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाइंग में हारना है, ये तो क्लियरली डेटा बता रहा है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते इस बात को, ठीक है, एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ठीक। मेरे को तो ये डेटा बता रहा है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा, मेरे तो सामने डेटा है कुछ दिनों का, जब से हमने इसको डाला हुआ है, ये लो डेटा देख लो आप। और टाइम से कोई नहीं जीत पाया, टाइम से कोई जीत ही नहीं पाया, टाइम सिर्फ एक को सपोर्ट करता है, वो है सेलर, और दोनों लेग प्रॉफिट में है, चाहे पुट सेल करी तो चाहे कॉल सेल करी तो दोनों प्रॉफिट में, देख लो सेलिंग की पावर देख रहे हो आप, ठीक। एक तो ये बात बतानी थी, दूसरी बात सुनो क्या बताना है, इसलिए मैं आपका थोड़ा साइकोलॉजी चेंज कर रहा हूँ, जहाँ आप दोनों की साइकोलॉजी चेंज हो गई बस वहीं बन जाओगे फिर आप ठीक से एकदम ट्रेडर। अब मैं कह रहा हूँ ढंग से सुनना एक बात और, ये लॉसेस देख के बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक। अब आप मुझे बताओ, ये हमने जो पैसा दिया है, ठीक है, अपनी ट्रेड तो यही है, इसकी सिक्योरिटी का ही तो पैसा दिया है हमने, बताओ, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपनी हैप्पीनेस का, खुशी का थोड़ा पैसा नहीं दे सकते क्या। अब मैं इसको खुशी क्यों बोल रहा हूँ बताओ, वाई इट इज़ हैप्पीनेस, वाई, अरे बॉडीगार्ड रखे थे ये हमने चार, ये दिख रहे हैं, ये पहले ये बॉडीगार्ड थे, इनका काम हो गया, इनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, इनको भेज दिया पैसे देके, फिर नए बॉडीगार्ड हायर करे सस्ते दामों में, उनको पैसा दिया उनका, ठीक है, जितना पैसा यहाँ मिला के दिया था फिर उनसे कम दिया इनको हमने पैसा, फिर अब जो हायर करें बिल्कुल ही सस्ते दाम में हायर करें हैं, समझे बात। तो हमने ये बॉडीगार्ड हायर करे हैं, बॉडीगार्ड फ्री में नहीं आते, वो हमने किस लिए, ताकि हम चैन की नींद सो सकें रात में, करेक्ट। तो अब उसके लिए पैसा देना अगर आपको खल रहा है तो बहुत पछताने वाले हैं वो लोग, ठीक है। जिस दिन चोरी हुई घर पे सारा सामान जाएगा, सारा, तो जो ये पैसा थोड़ा बचाने के चक्कर में लग रहा है ना कंजूसी में, ठीक है, घर का सब जाएगा। अब बताओ साइकोलॉजी चेंज हुई, ऐसे रीड करते हैं डेटा को, अब ये भी तो तरीका है डेटा रीड करने का, ये कह रहा हूँ मैं बस आपसे, ठीक है। तो जो कि बात बहुत लेट समझ में आती है हमें, अब मुझे लगता है क्लियर है, अब मुझे इस पर ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, चलो।